Hello, can you hear me? Yes. Okay. We'll start with the first question. The number of distinct real roots. Real roots. 129. Hmm? Yes, sir. Why 129? Is it 129 or 130? Sir, 129. You have marked G on 130. Yes, sir. But the doubt is 129. What have you tried in the question? Sir, derivative, and then from there I was trying to do something. What? सर पहले डेरिवेटिव निकाल के लोकल मैक्सिमम मिनिमा कर सकते हैं और फिर कर्वेचर चेंज का देख सकते हैं, फिर उधर से कुछ ट्राई कर रहा था। मतलब क्यूबिक और फोर्थ पावर तक ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा था। और लॉजिक क्या है? डेरिवेटिव निकालने से क्या पता चलेगा? तो डेरिवेटिव निकालने से जो स्लोप का बिहेवियर पता चलेगा एक तरीके से, वो बोल सकते हैं। उससे रूट्स कैसे पता चलेगा? नहीं सर, रूट्स, एग्जैक्ट रूट से हमें मतलब नहीं है ना। वी जस्ट वांट द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, सो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड समथिंग। So what was the conclusion after taking derivatives? नहीं सर, ऐसा कुछ आया नहीं। सर पहले मतलब डेरिवेटिव निकाला था। एक सेकंड में वापस निकालता Why have you not tried factorizing this expression? हूँ। ओके। मतलब डिग्री 8 पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव निकाल के भी कितना देखना पड़ेगा? Why have you not tried to reduce it by factorizing? ओके ओके। If you check, how do you try to factorize this? अगर factorize करना हो तो क्या attempt करोगे यहाँ पे? सर हम्म सर एक काम कर सकते हैं, इवन पावर्स को एक तरफ लाते हैं और ऑड पावर्स में से एक एक्स कॉमन निकालते हैं और मे बी समथिंग लाइक। No. The first thing here, if it is a polynomial of degree greater than 4, 5, first thing here is to guess some roots. ओके रूट्स, ओके यस। If we guess x is equal to 1, we can check 1 minus हाँ 1. वन आ रहा है सर, आ रहा है। So then x minus 1 is a factor. It is a clear factor. The whole thing can be written as x minus 1 common. Now it is x power 7 minus x power 5.
plus 3x cube minus you are getting x square minus 3x plus 1, right? ओके। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ सर। सर आपने लॉन्ग डिवीजन करने की बजाय ये कर लिया ना। साफ दिख रहा है x minus 1 we can take common every term. If you check here in this expression, 1 minus 1 plus 3 minus 1, 3 and 3 cancel. This is also having x minus 1 as a factor. So you have x minus 1 whole square, and inside you'll have x power 6 minus, we can just write it as x power 6 x minus 1 minus x power 6, so plus x power 6 minus x power 5, so plus x power 5 x minus 1 plus 3x cube minus 3x square, so plus 3x square x minus 1 minus 3x square है plus 4x x minus 1 minus 4x, so plus x. There is सर आप a ये इधर मतलब हाथों हाथ कैसे फैक्टराइज कर रहे हो मतलब। अच्छा कोई टर्म मिसिंग है तो आपने इधर जैसे माइनस एक्स पावर सिक्स प्लस एक्स पावर सिक्स किया और फिर फैक्टराइज कर दिया ना। हम्म, नहीं तो सर लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो. You are getting x minus 1 square and you will get x power 5 into x plus 1 plus 3x into x plus 1 minus x plus 1. After taking 2x minus 1, this is what will come. You can check it. ओके। From नाउ वी कैन here, टेक वन मोर x एक्स plus पावर 1 is प्लस वन। common. हाँ। एंड देन दिस द पॉलिनोमियल हैज एक्स पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस वन। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एक बार एक्स पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस वन का और देख लेते हैं इसका कोई रूट आएगा या नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाइव एक्स पावर फोर थ्री It इजी। is an increasing function. It will have one root. यस वन रूट। Total number of roots is 3, distinct. Obviously, the actual number of roots is 4 because 1 is repeated twice. ओके There are 3 distinct roots. ओके सर गॉट इट। The expression is long. The only way to do it is factorizing it and getting something from there. सीधा डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके सीधा डेरिवेटिव करोगे तब भी x पावर 7 का पॉलिनॉमियल रहेगा, फिर उसमें फिर और सोचना पड़ेगा, राइट? यस सर मैं अगले पेज पे आ गया था। यस सर सर उसी पेज में 132 और 136 भी है एक्चुअली। 132 और 136 भी। सर इस टाइप का बाइनोमियल में मतलब देखा था लेकिन इसका एग्जैक्ट अप्रोच क्लियर नहीं है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके Number of n has to be an integer in this set.
such that this inequality is true, how will we simplify this inequality? We can write 11 as, This is an obvious simplification. yeah, okay, Right? got it. Yeah. This expansion you have to Hmm. calculate now. It is going to be all the odd terms will get Uh, cancelled, I think. okay, and twice No, the odd term. terms will Even, remain. हाँ, even कैंसिल, ऑड टर्म्स रहेगी दो, हाँ, टू टाइम। NC1 है. You will get NC1 10 power n minus 1 plus NC2 NC3 10 power n minus 3 and so on till NCn minus 1. Depends on whether n is even or odd, right? यस। No, it will be this last term will be there. Yeah. It doesn't depend on it actually. It is just going to be this term. 10 power 1 is greater than 10 power n. This is my inequality. After subtracting the two, this is what should come, ओके। right? So how will you solve this inequality now? Solve this inequality. सर इसमें वैल्यूज ही डालनी पड़ेगी? Think about it for a little bit. सब चीज मैं ही बताऊंगा कि तुम भी कुछ सोचोगे थोड़ा. हाँ, नहीं सर, सोचेंगे। सर हम क्योंकि 10 की पावर एन एक पॉजिटिव नंबर ही है, तो हम उससे ओवरऑल इनइक्वालिटी से डिवाइड कर सकते हैं 10 पावर एन से, तो। हेलो हम्म. सर। करो डिवाइड सॉल्व करो इनइक्वालिटी. अच्छा, एक सेकेंड। जो भी करना है करो. अच्छा, ठीक है। सर ये उसमें आ रहा है सिग्मा एनसीआर 10 की पावर आर, वेर आर गोज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। हम लोग ने मतलब वहीं से तो एक्सपैंड किया है, फिर से वापस बाइनोमियल में लिखने से क्या फायदा होगा? अच्छा, एक सेकेंड।
बाइनोमियल सीरीज दो सीरीज को ऐड करके निकाले हैं ये। अब फिर से बाइनोमियल में लिखने से क्या फायदा होगा? You need to find the n from 1 to 100 for which this is valid. What happens when n is equal to 1? हाँ ये सर मैं अभी बोला था वैल्यूज पुट करते हैं सर। सर लेकिन ठीक है, दैट विल बी 1 C1 10 की पावर 0। नो, इट वोंट वर्क। Does it work or not work? नो सर। What happens when n is 2? नो, नहीं, हाँ, नो नो नो। आई थिंक यस। Yes. नो। हाँ। ये ट्रू है। नो। 4 पे क्या होगा? एक सेकंड सर, मैं चेक करता हूँ। C1 प्लस 4C3 10 प्लस। नो। और 5 पे? हाँ सर, एक सेकंड। तो सर और कोई तरीका नहीं है क्या हिट एंड ट्रायल के अलावा? ये हिट एंड ट्रायल नहीं है। You're checking the small cases, this inequality, when it stops working. और कोई तरीका तुमको आया है? सर मैं 10 की पावर n डिवाइड कर रहा था और फिर सिग्मा R1 से लेके n-1। सर वो बाइनोमियल नहीं हो जाएगा, वो सीरीज कंटिन्यूइंग कोएफिशिएंट्स का हो जाएगा, लेकिन वो भी लेंथी हो जाएगा वो भी। उसमें सारे टर्म्स हैं कि मिसिंग टर्म्स हैं? हाँ वही मिसिंग टर्म्स एक्चुअली, वी नीड टू ऐड एंड सबट्रैक्ट इट अगेन। ये बहुत मुश्किल था क्या चार टर्म्स चेक करना? नहीं सर, मुश्किल नहीं था, लेकिन वो क्लिक नहीं करता ना कि कब ये इसको छोड़ना है और इस पे आना है हिट एंड ट्रायल पे। मतलब इट इज नॉट हिट एंड ट्रायल, आई नो दैट, बट मींस दिस थिंग चेकिंग द इनइक्वालिटी। Is it working for n is equal to 5? या सर, इट इज वर्किंग। तो क्या पता चला? तुमको क्या लगता है 5 के बाद अब वर्क करेगा कि नहीं करेगा? सर 5 के बाद वर्क तो करना चाहिए। This this whole sequence is slowly increasing. You can see that inequality is becoming closer and closer every step. मतलब कन्वर्जिंग सीरीज टाइप ऑफ, नॉट दैट बट हाँ, ओके गुड। At 5, the left hand side is bigger than the right hand side. हाँ। The answer is 96. It doesn't work for 1, 2, 3, 4. Everywhere else it will work. ओके। There is no other way that will be faster than this. या ओके गॉट इट। What is the next doubt? यस, एक सेकंड। जस्ट
सर 136 भी डाउट था। सर ऐसे क्वेश्चन में मेनली तो हम डेरिवेटिव निकाल के ही करेंगे ना अभी, हाँ, या फिर इधर भी नंबर हम ऑफ कुछ गैसिंग का डिस्टिंक्ट काम करेंगे? क्वेश्चन देखने दोगे कि पहले ही अभी बताना पड़ेगा? नहीं नहीं सर ऐसे ही पूछा। Double derivative is always positive, which means that f dash x is increasing function, which means f dash x can have at most one root. It will have one root, which means this should have two roots, because between any two roots of f of x there is one root of f dash x. अच्छा, ये अपन ने रोल्स थ्योरम लगाया ना? Yes. ये इतना इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं किया तुमने? अच्छा, मैंने सर रोल्स थ्योरम का नहीं सोचा मतलब इसमें। You don't know that between any two roots of f of x there is one root of f dash x. नो सर आई नो। F dash x always like at most one root है, it's an increasing function like this. तो इसके पास एग्जैक्टली वन रूट ही होगा। That इसके पास means एग्जैक्टली वन रूट है तो उसके पास एग्जैक्टली टू रूट्स ही होंगे। there is a point where f dash x is zero. That point is your maxima minima point, which means there is a turning point in this curve, right? That point is a minima because f double derivative is positive at that point. So the graph of this function looks like this. This function is going towards positive infinity and negative infinity, and there is only one maxima minima point. ओके। It could be like this also, in which case there would be zero roots, but there is one real root for this. So you can check whether the function changes sign somewhere or not. It is very easy to check whether this function changes its sign somewhere or not. At 0, for example, value is -1, and then it has become +1, obviously, because it becomes infinity later, ओके। right? यस सर। It is obvious to predict that this graph has at least one root. Then it has to have only two roots. It has to be like this, not हाँ like तो this. या गॉट इट, मतलब एक रूट तो मिनिमम है ही, क्योंकि हम ये वो वाला थ्योरम जो था कि उस थ्योरम का नाम भूल गया, लेकिन वो अगर साइन चेंज कर रहा है तो फिर एक बार तो उसको जीरो होना ही पड़ेगा। यस सर गॉट इट। F of 0 in this is negative. F of positive infinity near when x is large, it is positive. It is obvious it has one root.
It is also obvious it has two roots, at least two roots. बिकॉज नेगेटिव में भी बहुत नेगेटिव जाओगे तो पॉजिटिव हो रहा है आंसर फंक्शन का. एफ अच्छा। ऑफ लार्ज नेगेटिव इज प्लस इंफिनिटी एंड जीरो पे नेगेटिव था, तो दैट मीन्स इट हैज गॉन अबव, इट इज क्रॉसिंग जीरो बिफोर जीरो also and after zero also. Two roots are guaranteed. But now we know that the graph is always concave up. The graph does not change its shape. Always double derivative is positive. Also, there is only one point of f dash x 0, which means there will be only one point of minima. Then there are two real roots distinct. Yes, sir. Exactly two roots. Got it. What's the next step? Okay, एक सेकेंड. सर नेक्स्ट डाउट ये 250 था. Number of points where the curve y is equal to the same question. Why is the same question being asked so many times? फिर से रियल रूट्स निकालना है इसका. सर एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, इसलिए मैंने डाउट पूछा. या फिर हो सकता है सर मैं बाद में ट्राई कर लेता हूँ, फिर भी नहीं होगा तो देख लूंगा. तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी चलेगा. नहीं नहीं, अभी 2 मिनट में सॉल्व करो. सॉल्व इट राइट नाउ. अच्छा ठीक है. चेक द आंसर. ओके.
There are obviously 4 points where derivative is vanishing. या So how many roots will be there for f of x? 5। What is so difficult here? ये सर बट रोल्स थ्योरम हमें मिनिमम रूट बताता है ना, उतने 5 है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। राइट, 5 डिग्री पॉलिनोमियल का 5 से ज्यादा रूट होगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। ओ अच्छा, इधर डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत भी नहीं थी। Like these are like super obvious questions. हाँ You नहीं सर, understand? ऑब्वियस तो है लेकिन मतलब क्लिक नहीं करता। ठीक है, अभी इसमें रोल्स थ्योरम का भी फंडा समझ में आया तो उससे भी ट्राई करूंगा। ओके। तो लेकिन बाय इस चांस इसके निकल जाते 3 एफ डैश के, तो फिर तो हम चक्कर क्योंकि एफ एक्स के 4 हो सकते हैं लेकिन वो मिनिमम है, तो हम कैसे वेरीफाई करें? 4 हो सकते हैं क्या? अच्छा नहीं नहीं, 4 भी नहीं हो सकते। 4 हो सकते हैं रूट्स इसके? मतलब 4 रियल रूट्स नहीं हो सकते ना सर? क्यों नहीं हो सकता? सर एक सेकेंड। सर अगर जैसे इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो वो पेयर्स में अकर आ जाए, तो फिर या तो तीनों रियल होंगे या फिर। These are the only possibilities of real roots. यस सर, वही। तो इसका, if there are 3 points, what would we say? सर आपने क्या बोला, इफ देर आर? If f dash x is equal to 0 had 3 roots, what would you say then? सर देन वी वुड से दैट मतलब 3 ही होंगे फिर, और क्या 3? 3 ही होंगे f of x के। 3 points of maxima minima है तो should the roots of f of x be greater than 3 or greater than equal to 4? अभी हम लोग को f dash x के 4 रूट्स है तो हम लोग ने 5 क्यों बोला था? हाँ ये सर 5 बोला था। क्यों बोला था? सर क्योंकि बेसिकली एक ज्यादा होगा ना गैप, अगर हम गैप से है तो फिर उससे एक ज्यादा बेसिकली आएगा ना रूट, क्योंकि तो दो। अभी तुम यहाँ पे 3 क्यों बोल रहे हो फिर? अगर f dash x के 3 रूट्स होते तो तुमने फिर आंसर 3 क्यों बोला? अच्छा हाँ, 5 ही बोलेंगे क्या सर। बोलना 5, चाहिए? 5 ही बोलेंगे। उससे आ रहा है, रोल्स थ्योरम से आ रहा है कि इट हैज एटलीस्ट 4 or more रूट्स, एंड 4 or more इज नॉट पॉसिबल, इट हैज टू बी 5 देन। 5, यस गॉट इट। व्हाट्स द नेक्स्ट डाउट? फॉर द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई इज। नो नो सर, नॉट दिस क्वेश्चन। ये जस्ट बन वन। गया था तुम्हारा? एक सेकंड में देखना पड़ेगा, बना था। हाँ ये सर बना था। सर ये द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई इज लेस देन 8, दैट वन। बताओ क्या इशू है इसमें, थोड़ा सा बताओ। सर मतलब ग्राफ प्लॉट किया था, क्या प्लॉट किया पॉइंट्स था ऑफ बताओ। इंटरसेक्शन निकाले थे। क्या ग्राफ आ रहा है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है।
यू हैव वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो कौन सा रीजन है पैराबोला में? पैराबोला इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसा है। वाई हाँ इज लेस देन एक्स स्क्वायर कौन सा रीजन होगा? सर, अगर हमने एक ऊपर का पॉइंट इसमें पुट किया, या फिर मतलब, हाँ, जैसे एक ऊपर का पॉइंट या फिर एक वाई एक्सिस का पॉइंट पुट किया, जैसे 0, -3, हम्म। तो फिर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी चेक कर लेते हैं और फिर हम देख लेंगे। तो ये ऑब्वियस नहीं है कि कौन सा रीजन है, ये रीजन है कि ये रीजन है नीचे? सर हाँ, ऑब्वियस होता है, लेकिन सर ये थोड़ा बेटर रहता है एक बार देखना, क्योंकि मतलब, हाँ, देखना बेटर होता है, तुम्हारे कंक्लूजन में पूछ रहा हूँ, प्रोसेस मुझे पता है। हाँ, एक सेकंड। सर ऊपर वाला ही होगा। ऊपर वाला रीजन है यहाँ पर। सर एक सेकंड। सर एक्चुअली बोलने में करते हैं तो फिर थोड़ा वो भी होता है, और फिर कुछ गलत हो गया तो एक सेकंड। Like seriously, this is like super obvious things. You don't know that y will be less than x square will be below the parabola. ये ये बिलो नहीं होगा, ये इसमें सोचना पड़ रहा है। हाँ, हेलो। आई एम लिसनिंग। यस सर, वो एक्चुअली मतलब ऐसे पूछते हैं तो फिर नहीं बता पाता, एक बार लिख के देखना पड़ता है। फाइनली लिख के देखने के बाद भी पता चल तुमने रॉन्ग आंसर क्यों बोला? सॉरी सर, मैं एक्चुअली उल्टी इनइक्वालिटी पढ़ लिया लगता है। y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे होगा पैराबोला के कि ऊपर होगा? You need to unmute yourself and have a conversation. यस सर। सर मेरे को आता है सर, एक सेकंड में देखता हूँ। फिर से अभी देख रहे हो? कितने बार एक ही चीज को देखोगे? 2 मिनट से एक ही चीज देखते जा रहे हो बार बार। ठीक है, देखो फिर। यस सर, नीचे वाला होगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कौन सा होगा? ऊपर होगा 1 के कि नीचे होगा? ऊपर। इस इतने चीज से क्या पता चल रहा है? यस सर। क्या पता चल रहा है? सर कि वो मतलब इससे तो नीचे बात कर रहे हैं। इससे मुझे समझ में नहीं आया, इससे का क्या मतलब है? सर ये y = x² से तो नीचे, लेकिन XY 8 से बड़ा होना चाहिए ना। तो फिर मतलब XY से भी नीचे, XY = 8 से भी नीचे। अभी एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का एक बार भी हम लोग ने बात किया है? नहीं। अभी क्या चीज का बात कर रहे हैं? y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का बात नहीं करोगे पहले? अच्छा हाँ, वो भी करेंगे, यस सर। सेकेंड इनइक्वालिटी से क्या पता चल रहा है अभी, ये सब से मिला के क्या रीजन आ रहा है? अच्छा, एक सेकंड। सर सर शेड कर सकता हूँ क्या, एक सेकंड। हाँ यस, ये वाला आ रहा है, और फिर मतलब फाइनली हमें ये वाला रिपोर्ट करना है, एक सेकंड। एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 का क्या मतलब होगा? सर इससे तो नीचे, ये वाले जो हाँ, इससे नीचे तो ये वाला रीजन की बात हो रही है, yes, ये वाले रीजन की बात हो रही है। ये वाला रीजन की बात क्यों नहीं हो रही है? सर क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे ना।
हम पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन लेंगे ना, इधर दूसरे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये एरिया निकालने में क्या मुश्किल हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं मिल रहे तुमको ये सब? सर मिल रहे थे अभी। सर वो पहले का डाउट है, एक सेकंड। फाइंड द एरिया। सर शायद कुछ गड़बड़ हो रहा था, एक बार बता सकते हो? क्या? सर कुछ गड़बड़ हो रहा था। फाइंड द एरिया, तुमको एरिया निकालने आता है? कैसे निकालते हैं एरिया? हाँ। निकालो। कुछ गड़बड़ हो रहा था मतलब क्या गड़बड़ हो रहा था? तो मतलब आंसर मैच नहीं हो रहा था एक्चुअली। तुमको पता है तुमने क्या लिखा था इंटेग्रल्स? एक सेकंड सर, वापस लिखता हूँ। सर अगर आप इसमें वर्टिकल एलिमेंट्स लिए तो फिर कैसे कर सकते हैं? क्यों अपने आप को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो? वर्टिकल एलिमेंट्स तो वर्टिकल एलिमेंट से ही लिया है, ऐसे ही लिखते हैं वाई डी एक्स। सॉरी, मतलब हॉरिजॉन्टल। क्यों मतलब कर रहे हो? क्यों करना है हॉरिजॉन्टल? इससे अच्छा, आंसर नहीं आएगा। आएगा ना? क्यों करना है हॉरिजॉन्टल? अच्छा। टाइम पास करना है बस। नहीं सर। ये इंटेग्रल करके आंसर कैसे नहीं आया तुम्हारा? सर मैंने ये नहीं किया था, मैंने गलती से ये वाला ले लिया था। मतलब ये वाला क्या होता है? सर मैंने डी वाई ले लिया था एक्चुअली। क्यों? सर क्योंकि डी वाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये हमेशा ऊपर है, तो फिर हमें ब्रेक नहीं करना पड़ेगा आई थिंक, इसलिए लिया था। ओ, बहुत नेचुरल है डीवाई लेना यहाँ ना। तुमको नेचुरली ज्यादा आसान क्या लग रहा है? डी एक्स, डी एक्स। पॉइंट्स बहुत मुश्किल थे निकालना। नहीं। तो फिर क्यों लोगे डीवाई? यस सर, ओके। लाइक ओवर थिंक करने से कोई फायदा हो रहा है अभी? नहीं सर। लाइक सीरियसली डूड, दिस लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन प्लॉट करना है, एरिया निकालना है। कुछ इशू ही नहीं है। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हो लाइफ को। हाँ ठीक है सर। आंसर क्या आ रहा है इससे निकाल के? सर आंसर मैं निकालता हूँ एक से। सर वो एकदम से मतलब कोई क्वेश्चन पूछते तो हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता मतलब। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय दैट, क्या मतलब? नहीं सर, मतलब जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो फिर वो जल्दीबाजी में गलत आंसर भी कर देता हूँ, लेकिन मतलब ऐसे ऑब्वियसली नहीं होगा। ये घर पे करने समय जल्दीबाजी क्या था? नहीं सर, घर पे नहीं, लेकिन अभी जैसे आप पूछ रहे हैं ना कुछ के इसका बताओ, जैसे ये वाला भी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर वो बोल वाई इज गलत। लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हाँ यस, वही वही वही। तो फिर वो जल्दीबाजी में वो गलत बोल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक सेकेंड। सर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 4y square is equal to x square into 4 minus x into x minus 2 is equal to। RHS is becoming 0. Yes, 0 and 0, 2, yes। Between 0 and 2, this is positive, this is negative, this is negative. There is no curve between 0 and 2. Yeah, Why? because a positive thing cannot be equal to negative। This whole thing is negative, this side is Yeah, positive. Between 2 and 4, this is positive, this is positive, this is positive, so it's fine. So domain is between 2 and 4, and after 4, again it is not fine. Do you understand? yeah, Before 0, below 0, what happens? This is positive, but this is negative. overall negative। There is no curve. After 4 also there is no curve. Yeah, So ultimately the whole curve is between 2 to 4, right? okay। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, What is the curve? These are two different curves. Y could be the plus root, Y could be the negative root. ओके। समझ में आ रहा है? हाँ, इन्हीं दोनों का बीच का एरिया पूछ। If you find the area under Y is equal to the positive root, सर लेकिन नहीं 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 सर एक्चुअली आएगा तो सेम ही एरिया ना। 2 to 4 अगर हम नेगेटिव लेके भी चले तो भी आएगा तो एरिया बाउंडेड तो सेम ही होगा ना। that's what I'm about to say, that it will be the same and you have to double it. या Find the integral and answer will be 2 to 4 double of it. वी कैन अप्लाई किंग और समथिंग लाइक दैट। यस सर, किंग्स भी अप्लाई कर सकते। ओके सर। तो सर हमें इधर एग्जैक्ट ग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी ना। You have to analyze where there is no curve and where there is a curve. ओके। There is no curve beyond 2 to 4 anywhere else. And at हाँ 2 and at 4, the curve is becoming 0. You have to find the area under the curve.
and there will be a negative version of it. Y could be negative of that also. So हाँ yes. area bounded would be double of whatever it is here. हाँ. If you can find this definite integral, double of that is the answer. Okay. What's the next one? एक सेकेंड. सर 127. This is one way to write the integral. We can easily say that because of the inequality sin x by x is less than 1, we can make an inequality here. This integral is less than pi by 4 to pi by 3, 2 times 4 minus cos x. Right? अच्छा सर, ये जो आपने इधर किया है आई इज π/2 से 3π/4. These are the options, dude. अच्छा अच्छा, ओ यस. तुमको जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान है कि कहीं और ध्यान है? नहीं सर, समझ गया. साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स. तो हमने हमारी एक हैंड साइड की इनइक्वालिटी जनरेट हो चुकी है, हम दूसरी साइड की इनइक्वालिटी जनरेट करनी है. क्या आ रहा है इससे इवेल्युएट करके? This is the exact value that we are getting. ओके. But you probably have to think of uh, something more. 8 minus cos x, 2 cos x is here. That should be less than 8 minus pi by 4 to pi by 3 is x. So in that range, cos x goes from
1 by root 2 to half. Cos x varies from 1 by 2 to half. Two cos x is from 1 to root 2. And 8 minus 2 cos x will be from 7, 8 minus 1, and 8 minus root 2, 7 to 8 minus root 2 to 7. And we are getting, okay, so it will be less than 7 for sure. 8 minus root 2 is smaller. Less than 7, 7x, so it will be 7 pi by 12. Less than 7 pi by 12 for sure. Less than 7 pi by 12. Okay, so this is not correct. This is 9 pi by 12, so this can be correct. हेलो सर। Hmm. सर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने cos x और 8 माइनस 2 cos x की रेंज के ऊपर कमेंट किया, राइट? पिछले 2 मिनट से जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दे रहा हूँ ना सर। तो फिर क्या डाउट है? सर क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया था इसलिए। क्या थोड़ा सा हो गया था? नहीं सर, इधर 8 माइनस रूट 2 टू 7 इसलिए वो पूछा। कैसे आया 8 माइनस रूट 2 टू 7? सर पहले हमने 2 cos x की रेंज निकाली, फिर cos x की रेंज निकाली। मतलब सॉरी, पहले cos x की निकाल ली थी, फिर 2 cos x। तो फिर हमें पता चला कि जैसे cos x 1/2 से 1/√2 वेरी कर रहा है, तो 2 cos x √2 से 1 वेरी कर रहा है। तो फिर क्या और किया? तो फिर सर हमने, मतलब इधर, और हमें चाहिए एक्चुअली 8 माइनस 2 cos x, तो हमने इधर जो राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रल है एक्चुअली उधर डाला। और फिर हमें ये एक और इनइक्वालिटी पता चली। We know that 8 minus 2 cos x is less than 7 for sure. We cannot use inequalities with 8 minus root 2. That doesn't make any sense. When we are using this inequality, we have to use what it is less than. हाँ, ओके। We are वी saying कैन that it is श्योरली से दैट definitely दिस क्वांटिटी less इज than लेस देन, हाँ। this, या which means this part is correct. This part is may not be correct. This is obviously too big. You have A and D are candidates. Now you have to think of the other side also, right? यस सर। Okay. 8 sin x minus sin 2x. This expression is there. We can say that 4 minus cos x, what can we say? 4 minus cos x in this range will be between 4 minus half, so 3 by 2, and 4 minus 1 by root 2. 2, 4, 3 by 2. It is definitely greater than this. 4 minus cos x is greater than this in this range, right? From pi ओके। by 4 to pi by 3, 4 minus cos x is greater than this. या डेफिनेट। So we can replace that and write
it is I is greater than 2 sin x by x multiplied by 4 minus 1 by root 2, right? ओके, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे? पूछना पड़ेगा। सोचोगे नहीं और दूसरों के लिए डिपेंड करोगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा। हाँ नहीं, तो इसलिए डिपेंड क्या कर रहे हो, सोच रहा हूँ। another approach is to directly find maxima minima of the function in this interval. Find the maxima minima and say that it will be less than m into pi by 3 minus pi by 4 less than capital M into pi by 3 minus pi by 4. अच्छा, समझा, हाँ, ओके, 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 ओके। सर, बट मोर एक्यूरेट आंसर विल कम फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, राइट? No, this is the actual inequality. This is the most accurate thing, maxima minima of the function. अच्छा, ओके, हाँ, यस, एक्चुअली दैट इज प्रिडिक्टिंग फंक्शन, दिस इज एक्चुअली। Find the derivatives, find the maxima minima, see what comes from here. अभी करूँ क्या? कभी भी करना है, जब करना है करो. हाँ, अच्छा, ठीक है। Time for the class is done. I have another class, so you try it later and see if you're getting anything. अच्छा, ओके। सर, पिछले स्लाइड में क्या मतलब, हम मतलब कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे क्या, इसलिए हमने अपनी अप्रोच बदली क्या? Yes. ओके, Okay, that's all for now. ओके।